Hello students, good morning and welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQ of the topic permutation and combination. In previous video lecture we completed the total concept of permutation and combination with factorial notation, and already we have completed the first 15 MCQs of this topic permutation and combination. It means right now we have to start the next MCQ, that is MCQ number 16. This topic is very interesting and completely based on what? Logic. And the next topic, probability, which is absolutely depends on this permutation and combination. This topic carries maximum 1 question for MST CET. It means maximum 2 marks for this topic. Okay, but we have to crack the single question. So let's study this question number 16. So this is the question number 16. Read the question. Number of arrangement of letters of the word mobile in which consonant occupy odd places. So what is the word mobile? So question number 16. This is the word mobile. So total number of letters 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n is equal to what? 6. So here vowels are O, I and E, 3 vowels. So definitely consonants are also what? 3. So what is the condition here? The condition is what? Which consonants occupy odd places. So this is the places 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 letters, 6 places. But this is the odd place, first place, third place and fifth place. This is the odd place, 3 places for odd which occupy what? 3 consonant. So this is the arrangement 3p3. And remaining even places 2, 4 and 6 for the vowels. So this is also 3p3. So total possible arrangement for consonant is 3p3, and obviously and means multiplication for the vowels 3p3. So it is a 3 factorial into 3 factorial. 3 factorial 1, 2, 8, 3. 1 into 2 into 3, 6. 6 into 6, which is equal to what? 36. So 3 factorial means what? 1 into 2 into 3. So that multiplication is 6. 6 into 6 is what? 36. So total possible arrangement for the word mobile where consonant occupy odd places. So how much that weighs? 36 ways. So option is what? B. So this is the B option. Okay. Now read the question number 17. So look at the question number 17. Number of arrangement of 3 boys and 5 girls. 3 boys है, 5 girls है, in which so that the boys are together. So boys, so that all boys are together. So देखो कितने boys हैं? 3 boys है. Girls कितने? 5. So n is equal to how much? 8. So पहले गर्ल्स को फिक्स करेंगे. So these 5 girls which can be arranged in 5p 5 ways, 5p 5 ways, and these 3 boys, first boy, second boy and third boy. So here, so this is as 1. उसको हम एक combines together, it is a 1 plus 5 girls, which is 6 factorial. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 बॉयज़ को मैंने कलेक्ट किया, वो 1 हो गए, उसी कंसिडर एज 1 प्लस 5 गर्ल्स है. सो 1 प्लस 5 दे आर अरेंज इन व्हाट? 6 फैक्टोरियल. एंड ये जो b1 b2 b3 है, b1 b2 b3, इसकी भी अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है. b2 b1 b3, b3 b2 b1. सो दिस कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज. 3 factorial into 6 factorial. So 6 factorial इसको सॉल्व करो, डेफिनेटली 720 आ जाएगा. 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. वो 6 factorial 720 है. 3 factorial 6 है. 6 into 720. So देखो 7 6 2 are 6, 6 2 are 12, 6 2 are 12, 1 4 3 2 0. So this is the answer 4320 of 17. So option is what? B.
ओके, सो दिस इज 16 एंड 17. यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ विल स्टार्ट द MCQ नंबर 18. देखो MCQ नंबर 18 क्या है. ABC, लुक एट द MCQ नंबर 18. ABC आर अमोंग 7%. 7% ABC उसमें से 3 है जो 7 में से है. हु आर टू बी सीटेड इन अ रो, एक रो में सिट किया है उनको. नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ABC सिट टुगेदर, वो एक कंबाइन होना चाहिए. सो देखो कितने हैं, टोटल 7 है, उसमें से 3 ABC है, ये 3 है. सो 3 + 4 दैट इज 7. सो ये जो ABC है, ABC उसको कंबाइन करना है. सो 1 + 4 विच इज 6 फैक्टोरियल. इसको कंबाइन करना, सेम टाइप का एग्जाम्पल है. और ये जो ABC इसकी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. ना ये जो 1 + 4 5 फैक्टोरियल है, इट इज़ अ 5 फैक्टोरियल. सो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 5 फैक्टोरियल कितना है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5. 5 4 = 20, 3 = 60, 2 = 180. सो 720 उसका आंसर है. 18 का आंसर 720. ऑप्शन क्या है, सी. एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18 आर वेरी सिमिलर. इन एग्जाम्पल नंबर 17 बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर. इन एग्जाम्पल नंबर 18 ABC अमोंग 7 में से ABC है. सो 7 + 4, सो 3 + 4 इज व्हाट, 7. 3 कौन से ABC, 1 + 4 5, दैट इज 5 फैक्टोरियल. Got it? So it is a 5 factorial. They can be arranged in 5 factorial ways, but that ABC can arrange, which is considered as 1, so they can be arranged in 3 factorial ways. So 3 factorial into 5 factorial, what is the answer, 720. So this is the solution of 18 MCQ. Now 19. देखो 19 में क्या है. Example number 19. Read the question here. I have a question here on the display board. There are 6 men and 4 women. 6 men और 4 women है. नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड इन रो. एक रो में उसको सीट करना है मेन और वुमेन को. सो दैट नो 2 वुमेन्स आर टुगेदर. 2 वुमेन साथ में नहीं चाहिए. आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. झगड़े भी हो सकते हैं. सो पहले हम मेन को फिक्स करेंगे. सो मेन की पोजीशन फिक्स 6. सिर्फ वुमेन एक साथ में 2 नहीं चाहिए. सो दे कैन बी अरेंज अल्टरनेट उनके अरेंजमेंट करना पड़ेगा. सो दिस इज अ 6 मेन एंड 4 वुमेन. सो टोटल n इज इक्वल टू 10. पहले हम मेन को फिक्स करेंगे 1 2 3 4 5 और 6. दिस इज 6 फैक्टोरियल. And this alternate position 1 2 3 4 5 6 and 7 alternate position for the women. So 7 P4. सो ये जो वुमेन 4 है वो अल्टरनेट फिक्स करेंगे तो कंबाइन नहीं हो जाएंगे. ऑटोमेटिकली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी. नो 2 वुमेन कम्स टुगेदर. 2 वुमेन एक साथ नहीं चाहिए. सो उसको अल्टरनेट फिक्स करो. सो डेफिनेटली आवर कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड. सो अल्टरनेट फिक्स करना मीन्स हर ये देखो दिस इज द पिक्चरल एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 19. दिस सर्कल फॉर द मेन 6 मेन हमें फिक्स करना पड़ेगा पहले. और दिस क्रॉस this is the place for the women. So this alternate position for the women which satisfy our condition 2 women comes not together. So देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे. 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. 7 - 4 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. ऑप्शन देखो क्या है 7P4 इंटू 6 फैक्टोरियल. यही उसने आंसर दिया है. सो नो नीड टू सॉल्व मोर. So what is option C? Okay, is C option. So यही ऑप्शन दिया है 6 फैक्टोरियल into 7P4. 7P4 why? 7 alternate places for the 4 women, and that satisfy our condition no 2 women comes together. Okay, so this is the MCQ number 16, 17, 18 and 19. We'll see more from 20.
Now example number 20. Look at the example number 20. Number of distinct permutation. Permutation means arrangement of the word, letter of the word Mississippi. Mississippi. Name of the city, Mississippi. Spelling M-I-S-S-I. Mississippi. S-I-P-P-I. We have to permutation of the letters of the word Mississippi. So here this is the permutation of n objects where some objects are repeated. So यहाँ पर repeated क्या क्या है देखो. S repeated, M repeated one, M is one time, I 4 time, S 1 2 3 4 time, P 2 time. 4 plus 4 8 plus 2 10 plus 1 number of letters is equal to what? 11. So total possible arrangement of this 11 factorial divided by 1 factorial which is not repeated, 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial. ये उसका आंसर. When some objects are repeated, so first n factorial upon p factorial r factorial, वो जो अपना फॉर्मूला है when some objects are repeated. So this is the arrangement. 11 factorial is the numerator, 2 factorial is 2, 4 factorial into 4 factorial, it is a whole square. So this is the answer. Example number 20 का ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखो, चेक करो, बी ऑप्शन. Okay, so this is the solution of MCQ number 20. Now read the MCQ number 21. In how many ways can 4 boys and 3 girls are arranged in a row so that boys and girls are placed alternatively? Okay, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल. ये भी कितने बॉयज़ हैं? 4. गर्ल्स कितने हैं? 3. सो टोटल नंबर कितने हैं? 7. अल्टरनेट फिक्स करना है. पहले किसी को बॉयज़ को फिक्स करो, नहीं तो गर्ल्स को फिक्स करो. पहले बॉयज़ को फिक्स करेंगे. दिस इज द प्लेस फॉर बॉयज़, राइट. 4 बॉयज़ है 4 जगह पर बॉयज़. So this is the arrangement for boys which is a 4 factorial. 4p4 means 4 factorial. And the girls can be arranged. देखो गर्ल्स को फिक्स करना है, वो भी 3 factorial. So 3 जगह 3 1 2 3 पे रख दो सिर्फ. सो अल्टरनेटली हो जाएगा 3 factorial. 4 factorial into 3 factorial. So ऑप्शन कितना है देखो, डी ऑप्शन है. आपको आंसर यहाँ देखना है. मेरे पास डिस्प्ले बोर्ड है, वहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, सॉल्व करके देता हूँ. ये डी ऑप्शन है. So 3 factorial into what? 4 factorial. This is the completion of 21. Now 22 देखो. In how many ways can 7 persons sit along a round table so that 2 particular persons are never together? So it is a circular permutation. So 7 person, ये राउंड टेबल फॉर मीटिंग ए 7, सो इसका परमुटेशन होता है n-1 फैक्टोरियल. सो यहाँ पर कितना होगा? 7-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल. सो हम क्या करेंगे, पहले 2 पर्टिकुलर पर्सन्स को सिट टुगेदर करेंगे. आउट ऑफ 7 2 पर्टिकुलर पर्सन्स, कौन से भी 2. सो इसमें से 2 पर्टिकुलर बाजू में लिए हमने, तो इस बच जाएगा 5 and 2. सो पहले इनको 5 फैक्टोरियल को सेपरेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और जो भी 2 पर्टिकुलर पर्सन्स को जो भी कंबाइन करना, उनकी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल वे होती है. सो इसमें हम कंबाइन किया, उसमें से 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल 7 20, 5 factorial is what? 5 into 240 होता है. इसकी मल्टीप्लिकेशन 240 होता है. 5 4 3 2 1 20 60 120 120 into 2, इट इज़ अ 240. और इसका डिफरेंस कितना आता है देखो, 0 8 480. 480 इज आंसर. शायद यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा 480, सो नन ऑफ दिस करो, बट ये 480 ऑप्शन करेक्ट है. नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. मैंने सॉल्व करके दिया, लेकिन एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है.
सर्कुलर परमुटेशन क्या कंसेप्ट है, जब कोई मीटिंग होती है सर्कुलर टेबल पे, वहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन होता है। जितने भी पीपल्स हैं उनके अरेंजमेंट अगर सर्कुलर टेबल पे करना है तो उसका आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल, जो मैंने फर्स्ट डे में एक्सप्लेन किया है, दैट इज सर्कुलर परमुटेशन। सो 7 पीपल्स वी हैव टू arrange on a round table, that is 7-1 factor, that is 6 factorial. Now what about this condition? क्या है कि 2 particular persons are never together, 2 particular person की वो साथ में नहीं होना चाहिए, कौन से भी 2, नॉट फिक्स। सो पहले 7 में से 2 बाजू में वो अलग अरेंजमेंट करना है तो उनकी अलग अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल होंगी, और जो भी 5 फैक्टोरियल है वो भी 5 फैक्टोरियल। उसको हम कम्स टुगेदर का है, उसको हम इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो दैट विल बी सेटिस्फाई द कंडीशन दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन्स नेवर टुगेदर। सो 720 इसका आंसर है, इसका आंसर 240 सब्सट्रैक्ट करो। व्हाई सब्सट्रैक्शन? बिकॉज उसमें से हमको निकालना है, हमने कम्स टुगेदर सॉल्व किया है, हमको फाइंड करना है नेवर टुगेदर। सो सब्सट्रैक्ट करो, दैट इज 480। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 22। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट 23rd। नाउ देखो 23rd क्या है क्वेश्चन, क्या है, NP5 इज इक्वल टू NC6, NC5 इज इक्वल टू NC6। हम इसको क्या करेंगे, NC5 का एज इट इज रखेंगे, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे n-6। सो ये उसका फॉर्मूला है, NCR इज इक्वल टू NC n-R। ये फॉर्मूला मैंने राइट साइड को अप्लाई किया, लेफ्ट साइड एज इट इज रख दी मैंने, लेफ्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, आइदर लेफ्ट और राइट अप्लाई करो। सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 5 इज इक्वल टू n-6, -6 यहाँ पर +6, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 11। आइदर अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, सो डेफिनेटली यू विल गेट n इज इक्वल टू हाउ मच, 16 नॉट 11। सो n-6 इज इक्वल टू 5। ये भी एक प्रॉपर्टी है, m इज इक्वल टू NCN, देन m इज इक्वल टू n होता है। सो m इज इक्वल टू n-6, n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 20, 21, 22 एंड 23। सो n इज इक्वल टू 11, ऑप्शन क्या है, बी है यहाँ पर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द सॉल्यूशंस अप टू हियर, प्लस दैट 4 + 4 8 क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट। Now after completion of MCQ number 23, now we have to start 24. So look at the MCQ number 24. So 24 में क्या है, NC3 is equal to NC12। अगेन हमें वही टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर NC4 फाइंड करना है। देखो 24 क्वेश्चन नंबर 24, NC3 is equal to NC12। तो पहले क्या करेंगे हम, जब राइट साइड में किया था, यहाँ पर लेफ्ट साइड में करेंगे, NC3 is equal to NC12। so these two terms are equal, so n-3 is equal to 12, n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ओके, सो यहाँ पर n नहीं फाइंड करें, यहाँ पर NC4 फाइंड करना है। सो 15 हमें फाइंड करना है NC4। सो 15C4, 15, 14, 13, 12 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4। ये भी एक कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी है सॉल्व करने का, इजी टेक्निक है ये। एक्चुअल NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, बट वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। 15C4, ये 15 को 4 बार डिक्रीज करना है, 15, 14, 13, 12 4 बार, वहाँ यहाँ पर 4 है इसलिए, और ये 4 को 1, 2, 3, 4 करना है। 15C5 रहा तो 15, 14, 13, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5 like this. Okay, 3, 12, 7, 15। अब ये देखो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है क्या, 15 to 11 हमें फाइंड करना भी 1365 आंसर है, चेक करो ऑप्शन क्या है, ये बी है। मल्टीप्लाई करो, 15 9 ज़ा 135, 135 + 1 136, 15 1 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135, ये आंसर। नाउ 25। ओके, 15CR इज इक्वल टू 15CR + 3, 15CR ये सेम।
ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। r+3। सो पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 15c, 15 माइनस r इज इक्वल टू 15c, ये c यहाँ पर c r+3। सो दिस टू टर्म्स आर इक्वल। तो देखो 15 माइनस r इज इक्वल टू r+3, ये माइनस r राइट साइड प्लस r, ये 15 माइनस 3 12, 12 इज इक्वल टू 2r। सो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, rc4 फाइंड करना है। सो यहाँ लिखते हैं rc4, 6c4, 6c4, 6c4 को हम 6c2 भी लिख सकते हैं। हाउ? 6 minus 4 2, 6c4 and 6c2 are same. So 6 into 5, नीचे 1 into 2, 2 3s are 5 3s are 15, 50 आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 24 and 25। ओके, प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करो, प्रॉपर्टी पे एग्जांपल पे फोकस करो। प्रॉपर्टी ऑफ परमुटेशन कैसा, ये जो टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, टॉपिक है ये। इसको हम डिनाई करते हैं, जैसे हम फोकस करते हैं किस पर, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीबीडी, लेकिन हम नॉट बाय इंटेंशनली बट हमसे वो गलती हो जाती है, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक को हम स्किप करते हैं। हम फोकस करते मैट्रिसेस, लाइन प्लेन, वेक्टर्स, 3D, इस पर फोकस करते। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपका स्कोर बढ़ेगा तभी आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। ओके, सो नाउ 26 एंड वन मोर थिंग। अब मैं पर्सनली बोलता हूँ कि बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर है, वो मेरे वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं करते। जिन्होंने इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली सब्सक्राइब बिकॉज मोर देन 40% व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबर्स। सो काइंडली सब्सक्राइब फॉर दिस यूट्यूब चैनल मैथ मेंटर। ओके, नाउ 26 NC4 इज इक्वल टू 495, NC4 इज इक्वल टू 495। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। देखो n की वैल्यू 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे कुछ वैल्यूज़ है। सो NC4 कैसे करेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये 3 बार हुआ, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इज इक्वल टू 495। 12 2 is 24, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 is equal to 495 into 24। अब इसको सॉल्व करने की एक ही बेस्ट तरीका है ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले 11 पुट करो, फिर 12 पुट करो, फिर 13 पुट करो, डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू मैच करेंगे। कैलकुलेशन फास्ट करो, बस इसका कोई ऑल शॉर्टकट नहीं है। रेगुलर मेथड ये है कि इसको कंप्लीट इक्वेशन सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन जाएगा, उसको सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करो, बट वो बहुत डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है। n की वैल्यू रखो यहाँ पर 11, 10, 9 और 8, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये आता है कि देखो 12 रखो यहाँ पर, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये चारों का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली ये आ जाएगा। सो दिस इज करेक्ट आंसर, n इज इक्वल टू 12। सो n इज इक्वल टू 12 ऑप्शन बी है मेरे पर आंसर से। अब ये तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो मैं नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पर मैं टेक्निक बताना चाह रहा हूँ। सो आप मल्टीप्लाई करो, 27 देखो क्या है, NC5 30 NC3, देन n इज इक्वल टू, ओके, नंबर 27। read the question, NC5 is equal to 30 NC3, 30 NC3। इसको वही टेक्निक है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 विच इज इक्वल टू 30 इंटू n
n minus 1, n minus 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 cancel, n minus 1, n minus 2, n minus 1, n minus 2, n cancel. Here is n minus 3, n minus 4 is equal to 5 4s are 20 and either 30, 30 into 20, 30 into 20. अब हमें फाइंड करना है n. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, अरे ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ये 27 है. अभी इसको हमने सॉल्व करना है तो n की जगह पर 20 30 26 रखो, 27 है. सो 28 माइनस 3, n की वैल्यू यहाँ पर 28 रखो, 28 माइनस 3 25, 28 माइनस 4 24. सो n इज 28 करेक्ट, यही ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन. सो सिर्फ मैंने n की जगह पर 28 रखा, 25, 28 माइनस 4 24, 25 का मल्टीप्लिकेशन 600 आता है, राइट में भी 600 आता है. सो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड n इज इक्वल टू व्हाट 28. ऑप्शन कितना है, ये है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 27. ओके, बहुत सिंपल है. यहाँ पर मैटर करता है ये जो स्पीडी कैलकुलेशन स्पीड से करो, डेफिनेटली विल गेट द आंसर. ओके, सो विल स्टार्ट नंबर 28, 29 एंड 30. नाउ लुक एट द MCQ नंबर 28. NC6 is 2. अभी तो थोड़ा अलग एग्जाम्पल है. 28 NC6 is 2, n minus 3 C6 which is equal to 33:4. हमें फाइंड करना है n. तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, 1 2 3 4 5 और एक n minus 5 डिवाइडेड बाय 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. इस 2 को हम एक्चुअल डिवाइड होता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर लेंगे. 1 2 3 4 5 और 6 डिवाइडेड बाय, इसको 6 बार सब डिक्रीज करना है. एक n माइनस 3, दूसरा -1 किया तो n माइनस 4, नेक्स्ट n माइनस 5, नेक्स्ट n माइनस 6, नेक्स्ट n माइनस 7, नेक्स्ट n माइनस 8, 6 बार. सो n माइनस 3 एक, उसमें -1 किया तो n माइनस 4, -2 किया तो n माइनस 5, -3 किया n माइनस 6, -4 किया n माइनस 7, -5 किया n माइनस 8. सो ये टर्म कंप्लीट कैंसिल इज इक्वल टू 33/4 है. सो n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 कैंसल. हियर इज n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n minus 6, n minus 7, n minus 8 which is equal to 33/4. आप देखो वही प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड. सो ये MCQ नंबर क्या है 28 है. 28 में ऑप्शन क्या है 11 12 13 14. सो ये ऑप्शन 11 ट्राई करेंगे. 11 10 9, 11 माइनस 6 ये 7 होगा. 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 8 3 इज इक्वल टू 33/4. 5 2s are 3 3s are 66/4. ये तो अलग ही आ रहा है. 66/4 33/4 आ रहा है. n माइनस 3 6 33/4. NC6 बराबर है 1 2 3 है. n 1 2 3 4 5 6. ये 1 2 3 4 5 6. n माइनस 1, n माइनस 2, n minus 6, n minus 7, n minus 8, 33/4. n minus 6, 11
10, 9. 11 minus 6, 5. 11 minus 7, 4. 11 minus 8, 3. 3 3s are 9. कहाँ गड़बड़ हुई समझ में नहीं आ रहा, बट आई थिंक हियर आंसर इज 11 ही आंसर है. n माइनस 3 से 6. क्वेश्चन तो करेक्ट है. ठीक, अब देखो 11 6 66, 3 3 9, 5 2 10, 5 4 3 2. एक बार हुआ है n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. करेक्ट है. n माइनस 3. देखो ट्राई करो, ये आंसर तो ये n इज इक्वल टू 11 ही आना चाहिए. अगर कहीं मेरी मिस्टेक हो रही कैलकुलेशन में तो आप उसको सॉल्व करो. ठीक है. नाउ 29 हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. यू फोकस ऑन दैट 29. आई विल स्टार्ट 30. नहीं 29 व्हाट 28 CR इज टू 28 C टू R माइनस 4. ओके, वही टाइप का एग्जाम्पल है. 29 इसको रिमूव करता हूँ मैं. ये 30 नंबर 29 20 CR is to 28 CR is to 28 C to R minus 2 to R minus 4 is equal to 225 is to 11. (28 factorial R factorial 28 माइनस R फैक्टोरियल. फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. 28 फैक्टोरियल 28 माइनस 2R माइनस 2R माइनस 4 2R माइनस 4 फैक्टोरियल 28 माइनस 2R माइनस इंटू माइनस प्लस 4 फैक्टोरियल इज टू 225 बाय 11. अब इसको डिवाइड करना है. ये 11 है. ये डायरेक्टली R पुट किया तो 28 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 28 माइनस R फैक्टोरियल. ये 1 ये कट करेंगे डायरेक्ट. ये 1 ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऊपर जाएगा. 2R माइनस 4 फैक्टोरियल 32 माइनस 2R फैक्टोरियल 2R माइनस 4 इज इक्वल टू 225 बाई 11. इससे और ज़्यादा मत सिंप्लीफाई करो. R की वैल्यू यहाँ पर तो ऑप्शन C विच इज़ 7 है. C ऑप्शन है यहाँ पर. उस R की वैल्यू 7. देखो R की वैल्यू 7 पुट करके ये 2 इंटू 7 14 माइनस 4 10 फैक्टोरियल 7 2 14 32 minus 14 32 minus 14 how much 6. ये 6 और 12 6 और 12 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 28 minus 7 28 minus 7 is 19 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल. ये देखो 225 बाई 11 आना चाहिए. ये ऑप्शन करेक्ट आया है. इसको यही टेक्निक है, उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है बस. इसको ज़्यादा एक्सपांड करेंगे तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसको कुछ लेंथी तो है, टाइम तो लगता ही है, बट कोई ऑप्शन नहीं है. उसको जहाँ तक उसको खींच सकते हो उतना खींचो. उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करो. नाउ 30 भी यही टाइप का एग्जाम्पल है. अब 30 देख तो क्या है यहाँ पर 30 NPR दिया है, NCR भी दिया है. NPR कितना है 110. NCR कितना है 55.
सो NCR का एक फॉर्मूला है NPR, NCR क्या होता है? NCR का फॉर्मूला क्या है? NCR मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 55, बट एक्चुअल दिस इज अ NPR divided by r factorial is equal to 55. So NPR is 110 upon r factorial is equal to 55. So r factorial is equal to 110 by 55. So ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पर रिड्यूस किया है. So r factorial is equal to 2. So 2 होता है 2 factor, 2 is 2 factorial. So what is this implies what? R is equal to 2. So इसकी रिड्यूस कितना होता है? 2 होता है, बट 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बिकॉज r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स r इज इक्वल टू व्हाट? 2. सो r की वैल्यू 2 आ गई. हमें क्या फाइंड करना है? NR फाइंड करना है. सो ये एक तो r 2 आ गया, सिर्फ n फाइंड करना है. सो क्या करना है? ट्रायल एंड एरर मेथड से n की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ पर रख दो. NC2 is equal to 55. So n into n minus 1 factorial, n into n minus 1 divided by 1 into 2 is equal to 55. So n into n minus 1 is equal to 110. ये मल्टीप्लाई इधर होगा. सो यहाँ पर n की वैल्यू 11 रख दो. 11 into 10 is 110. So n is equal to what? 11. r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 11. सो व्हाट इज आंसर? 11,2 इज द आंसर. 11,2 ऑप्शन क्या है? बी. सो r की वैल्यू 2 आ गई हमारी. सो r की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दो, नहीं तो यहाँ पर रख दो, कहीं पर भी रख दो और सॉल्व किया. NC2 मीन्स व्हाट? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2. ये रिड्यूस करना, ये भी करना है, 2 बार लिखना है. इज इक्वल टू 55, 110. So 11 into 10, 110. So n is equal to what? 11. So this is option B. ओके, बहुत ही सिंपल है, बट ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है ये टाइप के. सो इसको एक 10-12 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो, राइट. सो दिस इज द सफिशिएंट फॉर द प्रैक्टिस फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? परमुटेशन के एग्जाम्पल अलग होते, कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल अलग होते. उसको आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपर फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना है. अगर जो भी एग्जाम्पल वर्ड बेस है तो वर्ड बेस एग्जाम्पल को क्या करना है? उसको आइडेंटिफाई करना है कि एक अरेंजमेंट के एग्जाम्पल है या सिलेक्शन के एग्जाम्पल है. ओके, और सारी प्रैक्टिस है. 30 MCQs हुए, जो नेक्स्ट 20 MCQ है उसमें वर्ड एग्जाम्पल है. ओके, सो विल टेक ऑन टुमारो. So this is sufficient for today's video lecture and stay tuned on YouTube channel Math Mentor. इसको सब्सक्राइब करो. बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर वीडियो देखते बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे. सो काइंडली सब्सक्राइब माय YouTube channel Math Mentor. Okay, so thank you very much. We'll see you on tomorrow.